So it is not going to help you in any way. Remember. So thing is what matters here is knowledge. Why you have scored that much, I will tell you. First advantage was I taught you and me only set the question paper. Question paper was set by me only. I gave to the university the question paper, the same question paper which I set I gave you. I gave you some multiple choice questions. Most of the questions were from that only, or you have taken the help of each other. Like this you did and you have scored. So whether that is going to help you in any way? No, not at all. So again, I am telling you, please try to understand the things, whatever or whichever the teacher is teaching. Okay, so now coming to a Feld's rule. So it is one of the rule to find the efficiency of the group efficiency of the piles. तो एक रूल है. अच्छा, ये रूल क्या बोलता है आखिर देखिए. What this rule says. पहले इस रूल के बारे में जान लो, फिर हम इस रूल को अप्लाई करेंगे 2 पाइल्स के लिए, 3 पाइल्स के लिए, 4 पाइल्स के लिए, 5 पाइल्स के लिए, 8 पाइल्स के लिए, 9, 10 पाइल्स के लिए अप्लाई करेंगे. ओके, 16 पाइल्स के लिए भी करेंगे. सो व्हाट दिस फेल्ड्स रूल सेज, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल किस लिए यूज कर रहे हैं हम? ग्रुप एफिशिएंसी मालूम करने के लिए. व्हेन पाइल्स आर इन ग्रुप, हाउ द एफिशिएंसी इज फाउंड. What this rule says, according to this rule, the value of each pile is reduced by 1/16 on account of the effect of the nearest pile in each diagonal or straight row of which the pile is question in a member. मतलब आप अगर से एक पाइल लिए, वो दूसरे पाइल से कितने पाइल से ज्वाइन हो गया वो देखना. प्रॉब्लम करने बाद आपको बहुत इजी लगता है, ऐसा मैं समझा तो बहुत आपको समझ में नहीं आता, कॉम्प्लिकेटेड लगता. अगर से पाइल्स ग्रुप में है, एक पाइल है, हम उसको कंसीडर करें वो कितने पाइल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है. सपोज करो एक पाइल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है तो उसका एफिशिएंसी 1/16 कम हो जाता. फेल्ड एक जियोटेक्निकल इंजीनियर है, इज वर्कड ऑन दिस वन. एक अगर से पाइल दूसरे पाइल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है, डायरेक्ट लिंक में है, देन इट्स एफिशिएंसी विल बी डिक्रीज्ड बाय 1/16. If it is in direct contact with 2 piles, then the decrease in efficiency will be 2 into 1/16. If it is in contact with 3 piles, then the efficiency will be reduced by 3 into 1/16. If it is connected to 4 piles, then the efficiency will be decreased by, then the efficiency will be decreased by 4 into 1/16. Means for each pile there will be a reduction. So for each pile, the whenever in which it is joined, the efficiency reduced by 1/16 times. If it is connected by 2 piles, the efficiency is reduced by 2 into 1/16. If it is connected to 3 piles, the efficiency will be reduced by 3 into 1/16. Remember, I will bet you the topic on this topic minimum 2 questions will be asked on this topic, minimum 2. और आप अगर से रट के गए तो भी आप इसको याद रख सकते हो. Okay, so now I will give you example. Now here 2 piles are there. 2 piles are there. Now when I consider this pile, so it is connected to this pile. How efficiency is reduced? Okay, Shitala, what I told you, you see here. See here. This is the pile. This is the pile. This is its area. Stress. This is the stress. Because of this pile, on this area, stress is distributed. Do you agree with this one? This is when it is single pile. Suppose now the 3 piles are there. Now 3 piles are there. Now area because of this first pile is this one, and area because of this second pile is this one,
and area because of this third pile is this one, that is the stress isobar here, stress developed by this one. But as they are closely spaced, so as they are closely spaced, so definitely this stress will be common. Means when they are close to each other, here efficiency will be decreased. समझ में आ रहा है आपको? स्ट्रेस क्या हो जाते, एक दूसरे को क्रॉस हो जाते. यहाँ पर इसका अकेले का दादागिरी चलता, ये पूरा अपना ही राज चलाता. यहाँ पर आने के बाद एरिया कॉमन हो जाता. अगर से आप पाइल्स को स्पेसिंग ज्यादा देके रखेंगे तो वहां पर ये नौबत नहीं आते, जहां स्ट्रेस डोंट क्रॉस ईच अदर. तो एज दे स्ट्रेस क्रॉस ईच अदर, as the stresses cross each other, therefore when they are in group, spacing is less, then efficiency will be reduced. Efficiency will be reduced. I hope you understood this concept. And what the Feld told that, what the Feld, now the question arises. See, when efficiency is decreased, why we are कंस्ट्रक्टेड इन ग्रुप? हिसाब सुना इस क्वेश्चन. भाई जब कम हो रहा है एफिशिएंसी तो आप ग्रुप में बांध ही क्यों रहे हैं? तो आप मुझे एक बात बोलो कि आप एक बहुत बड़ा मॉल बना रहे, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना रहे, क्या एक ही पाइल से वहां पर आप उसको ठहरा सकते? उसकी ताकत बहुत भी होगी. समझ में आ रहा है आपको? एक आदमी, एक पाइल क्या उतना सारा लोड ले सकता? नहीं ले सकता. तो हमको ग्रुप में लेना ही है. हाँ, आप ये बोल सकते कि सर आप ऐसा मतलब स्पेसिंग रखो जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ जाए, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है. अगर से आप ज्यादा स्पेसिंग रखेंगे, हो सकता है आप ज्यादा स्पेसिंग रखेंगे, आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, लेकिन वहां पर पैसे बहुत लगेंगे आपको. इट इज गोइंग टू बी अनइकोनॉमिकल. इट इज गोइंग टू बी अनइकोनॉमिकल. इसलिए हमको स्पेसिंग कम करना ही पड़ेगा, लेकिन इतना भी मत कम करो कि एफिशिएंसी बहुत ही कम हो जाए. मैं मानता हूं आपको, सपोज करो टॉपर इज देयर इन क्लास, ही इज वेरी गुड एंड ही इज स्कोरिंग 90-95% मार्क्स, और वो काम पूरा कर दे रहा है, उसका एफिशिएंसी 95% है. लेकिन एक चार हम एवरेज लड़कों को लेंगे, एक काम करना है, लेकिन वो अकेला टॉपर नहीं कर सकता, हम चार लोगों को लेना ही पड़ता है. हो सकता है चारों एवरेज लड़के होंगे, थोड़ा कम करते होंगे, एफिशिएंसी ग्रुप में कम भी होती होंगी, लेकिन काम इतना बड़ा रहता है कि हमको ग्रुप में लेना ही पड़ता है. और याद रखो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द पाइल्स आर टेकन इन ग्रुप ओनली. द पाइल्स आर टेकन इन ग्रुप ओनली. सो दैट इज द थिंग, व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर, efficiency will be decreased. Efficiency will be decreased. Okay, so how much it is decreased? What happens when I give you the 2 pile, 3 pile, 4 pile, 5 pile examples? Will come to know. At least you are asking question. I am feeling very good. मतलब अब मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन तो रहे हैं कम से कम. मुझे तो लगता था कि कोई भी सुन ही नहीं रहा है, सब किचन में जाके बैठ गए. तो this is my request to you. You try to, like, such questions will come in your mind. और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, फॉरगेट एग्जाम, जीटी इज द बेस्ट बेट. बेयरिंग कैपेसिटी और पाइल फाउंडेशन आप कितना हो सके उतना डिटेल में कर लो. मैं भी यहाँ इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूं, मुझे मालूम है मैं सिलेबस नहीं भी पढ़ाया, क्वेश्चन पेपर मैं ही सेट किया, तो आप सब 70 में से 70 ले रहे, 11 इनको कोई यूज नहीं है. तो कहीं मेरे को मालूम है आपको वाइड रेशियो पोरोसिटी भी नहीं आता, परमेबिलिटी क्या है नहीं मालूम आपको, आप 70 आउट ऑफ 70 लिए. इट इज नॉट गोइंग टू, आई मीन, यूज एट ऑल. So what I want is, if you are serious about it, तो पहले आप गेट एग्जाम सीरियसली करो. So I am not any, मैं ब्रोकर नहीं हूँ किसी इंस्टीट्यूट का. अगर से इंपीरियल का आप लियो तो कोई गलत नहीं है. एक तो रीजनेबल रेट है, 10,000 में आपको हर चीज, टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ. एंड में क्या करता है, आपका सिलेबस खत्म होने के बाद आपको सीरीज कंप्लीट करना है, तो सीरीज भी ले रहा, नोट्स दे रहा, वीडियोस दे रहा, तो 10,000 इज नॉट अ बिग. और इस बार हम कॉलेज वाले इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर, नहीं तो आपको सब्सिडी मिलता था. हम सबको कंपलसरी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अब बाद में अटेंड नहीं करते. ऑफलाइन क्लासेस रहते तो वी वुड हैव टेकन द इनिशिएटिव्स, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. उसके बाद आप खुद पढ़ाई करो, खुद हर सब्जेक्ट को डीप में जाओ, एक ऐसा आया, ये क्या है समझने की कोशिश करो, एंड एक्सेल करो. और मैं आपको बोल रहा हूँ एप्टीट्यूड, मैथ्स और जीटी, ये तीन आपके 45% मार्क्स देते आपको 100 में से, याद रखो ये तीनों ही. उसके बाद एनवायरमेंट को ले लो, एनवायरमेंट एक करते करते आप 55% तक आते हैं, 55 to 60% तक.
एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक, और ये इतने सिलेबस ज्यादा नहीं है, जियोटेक तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर को लास्ट में आ जाओ। प्लांट वे से करो। आई एम वेरी हैप्पी दैट 2-3 है, लैंड वे है, अच्छा मार्क्स स्कोर करी, आप भी स्कोर कर सकते हैं। सो बेस अगर से वो थर्ड ईयर में बहुत से सब्जेक्ट के बगैर 40 शी हैज स्कोर्ड मींस शी कैन गो, मतलब बिलो 500 भी जा सकती है अगर से वो शी वर्क्स हार्ड। तो आप भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो करी लास्ट टाइम हमारा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दोज हुएवर वर्क्स डेफिनेटली यू विल सक्सीड, और उस पे सारा ध्यान लगा दो आप। ओके, so now you take a break for 2-3 minutes, then I will start next one. That I will tell you, spacing using all the things I will tell you. डिजाइन करते समय स्पेसिंग निकालते बेटा, उसका एक प्रॉब्लम भी आज मैं बताता हूं कि स्पेसिंग हमको कितना रखना चाहिए कि इकोनॉमिकल भी बने और एफिशिएंसी भी वन आ जाए। ओके, वैसा भी प्रॉब्लम है आज, that I will tell you after this one. So now you have a break of 2